Now, ladies and gentlemen, thousands of devotees continue to undertake the Amarnath Yatra with unwavering faith. But this year's pilgrimage has sparked concerns. The naturally formed Baba Barfani ice shivling appeared to shrink dramatically within days of the yatra beginning. Images from inside the holy cave suggest that the sacred ice has melted significantly, prompting anxiety among the pilgrims hoping to have darshan before it disappears completely. While authorities have not issued an official explanation, experts point to a combination of factors that may have accelerated the melting. Rising temperatures in the Kashmir Himalayas remain the biggest concern. A large influx of pilgrims inside the cave can also slightly raise the ambient temperature. Changes in humidity and airflow inside the cave, reduced snowfall, warmer weather, and altered water seepage patterns may also affect the annual formation and the longevity of the naturally occurring ice shivling. Now, despite the concerns, the spirit of the yatra remains undiminished. Devotees say that their faith is not limited to the ice shivling alone, but to the sacred Amarnath cave itself, believed to be the place where Lord Shiva narrated the Amar Katha to goddess Parvati. Many pilgrims who could not witness the shivling in its full natural form say that the pilgrimage itself is a blessing and that reaching Baba Barfani's abode is an act of devotion beyond any physical manifestation. So even as questions are raised over climate changing weather patterns and the future of this sacred natural formation, the faith of devotees continue to remain steadfast. And to discuss this further, I'm joined by our guest this afternoon. I'm being joined by environmental activist, Mr. Atul Sati. Mr. Atul Sati, good afternoon. Thank you for taking the time and joining me over here at News 9. Now, what we are playing on our screens is a shrinking Baba Barfani, and this has led to the dismay of several pilgrims who were there for darshan. Now, while they say that it doesn't really impact their faith of devotion as far as Amarnath Yatra is concerned, but I want to understand from you that what are the factors? We are definitely looking at global warming that is impacting world over. But are there other human factors also that could have led to this shrinking or diminishing of Baba Barfani? सर्टेनली ये तो निश्चित तौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तो अफेक्ट कर ही रही है, क्योंकि पूरे हिमालय रीजन में हम पिछले कुछ सालों में इस पूरी फिनोमिना को देख रहे हैं कि Well, it is a matter of concern as far as rising temperature, lower snowfall, reducing the annual ice formation is the reason why Baba Barfani is melting. We will try and reconnect that line with the environmentalist Atul Sati, who was providing us with certain insight on what could have led to it. Of course, this has led to the dismay of the pilgrims who are there at Amarnath, as thousands of devotees still continue to undertake the Amarnath Yatra with unwavering faith. But the diminishing Baba Barfani ice shivling appeared to have impacted the pilgrims. Images from inside the holy cave suggest that the sacred ice has melted significantly, prompting anxiety among pilgrims hoping to have the darshan before it disappears completely. Now, authorities did issue an official explanation saying that the shrinking of Baba Barfani is a result of several factors that may have accelerated the melting. Rising temperature in the Kashmir Himalayas remaining the biggest concern, and large influx of pilgrims inside the cave could have also slightly raised the ambient temperature. Changes in the humidity and airflow inside the cave, reduced snowfall, warmer weather, and altered water seepage may have also affect the annual formation and the longevity of the naturally occurring ice shivling. These are the concerns as far as the pilgrims are concerned, but the spirit of the yatra remains undiminished.
Devotees say that their faith is not limited to just the ice shivling alone, but to the sacred Amarnath cave itself, which is believed to be the place where Lord Shiva narrated the Amar Katha to goddess Parvati. Many pilgrims who could not witness the shivling in its full natural form say that the pilgrimage itself is a blessing and that reaching Baba Barfani's abode is an act of devotion beyond any physical manifestation. So even as questions are raised over climate, changing weather patterns and the future of this sacred natural formation, the faith of devotees continue to remain steadfast. I beg your pardon, Iltija Mufti has also tweeted raising concern about the diminishing ice shivling at Baba Barfani. It does impact all those pilgrims who were hoping to get a darshan. And we have managed to reconnect with our environmentalist guest, Mr. Atul Sati. Atul Sati जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, उससे पूरे देश भर, क्या पूरे विश्व भर देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट हुआ है। पर जहाँ तक बाबा बर्फानी की बात सामने आती है, क्या कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी कारण बन सकते हैं उस श्रिंकिंग या जो मेल्टडाउन देखा जा रहा है उसकी वजह से? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था है वो अभी भी बरकरार है, वो खुश है कि वो अमरनाथ तक पहुंच सके हैं, पर जहां तक दर्शन की बात आती है 5वें दिन के बाद से वो पिघलते हुए देखा जा रहा है। नहीं नहीं, निश्चित तौर पर जो है ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर है, और जो है बढ़ती हुई यात्रा का दबाव जो है ह्यूमन फैक्टर है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो हिमालय में पर्यटन में, यात्रा में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, बहुत बढ़ोतरी हो गई। और बहुत ज्यादा जो है, जब ह्यूमन वहां इंटरवेंशन होगा, ज्यादा लोग वहां जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो और ज्यादा उसको बढ़ा देगा। ये जो है पूरे हिमालयी रीजन में हम देख रहे हैं कि बर्फबारी का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले जो बर्फबारी हो रही थी उसमें जो है बहुत अंतर आया है, और साथ में जो है पर्यटन का जो पूरा पैटर्न है, जो यात्रा का हमारे यहाँ जैसे चार धाम यात्रा है या अ, अमरनाथ की यात्रा है या बाकी टूरिज्म है, वो पूरे ही हिमालयी रीजन में बढ़ा है। और उसकी वजह से भी यहाँ जो है, चाहे वो अमरनाथ का मामला हो या यहाँ उत्तराखंड में भी एक जगह जो है नीति वैली में, वहां भी सेम इसी तरह की गुफा में पानी ऊपर से टपकता है और उससे जो है शिवलिंग बनता रहा है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में हम देखते हैं जैसे मई जून का समय आता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही लोग अब, पहले जो है 2-3-4-5 साल पहले तक जब ज्यादा लोगों को वहां का पता नहीं था तो वो बना रहता था, लेकिन अब जैसे ही लोग जा रहे हैं, ज्यादा संख्या में ज्यादा यात्रा वहां हो रही है, पर्यटन ज्यादा हो रहा है, तो उसके फॉर्मेशन में भी, वो जो शिवलिंग है उसके फॉर्मेशन में भी अंतर पड़ रहा है। और आसपास भी जो बर्फ के ग्लेशियर थे उन पर भी उसका असर पड़ रहा है। जो ग्लेशियर्स हम जुलाई अगस्त तक जो है देखते थे, वो जो है मई जून में ही पिघल जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या लोगों की पर्यटन की बढ़ोतरी जो है एक फैक्टर निश्चित तौर पर इसमें माना जा सकता है। क्या हम लोग कोई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है श्राइन की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, लोगों की तरफ से, जिससे ये जो बाबा बर्फानी की जो आइस शिवलिंग है जो पिघल रही है उसको कुछ हद तक हम लोग स्लो कर सकते हैं या कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ ऐसे कदम लिए जा सकते हैं? अब तो जो है जहां हम यात्रा को या पर्यटन को ले गए, जिस संख्या में, जिस मात्रा में लोग जा रहे हैं, उसको तो आप कम नहीं कर सकते, उसको तो सीमित करना मुश्किल है। और बाकी जो धरती के गर्म होते जाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी आप बहुत ज्यादा इंटरवेंशन, आपका जो कोई लोग हैं, हाथ जो नहीं है, कोई रोल पर्यटक नहीं है, है। जो केवल पिलग्रिम्स आप हैं, इतना क्या जरूर उनके ये क्राउड कर को सकते, रेगुलेट किया जा सकता है? हाँ ये किया जा सकता है कि रेगुलेट किया जाए, एक समय में कम लोगों का वहां जाने की व्यवस्था की जाए, कि एक साथ जो है, जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो जा रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उसकी संख्या को सीमित किया जाए,
इससे आप थोड़ा बहुत उसमें प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि लोगों के जाने से जो है बहुत सारी चीजें वहां जो है उस तरह का कूड़ा जाता है, पॉलीथीन जा रहा है, लोगों के साथ बाकी सामान जा रहा है, वो भी उस पूरे उसको असर करता है। तो इसको केवल ये आप सीमित कर सकते हैं कि वहां संख्या अगर सीमित कर दें तो थोड़ा बहुत उससे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो है बाकी जो चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, वो जो प्रभावित कर रही हैं, जिसमें कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कह रहे हैं, मौसम का पैटर्न बदल रहा है, ये सब जो चीजें हैं मिल करके वो उसको प्रभावित कर रही है। तो केवल जो है एक चीज करने से नहीं होगा, हमको इसमें लॉन्ग टर्म चीजें देखनी होंगी, और ये पीछे नहीं लौटाया जा सकता। पर्यटन को या यात्रा को हम जिस तरफ ले गए हैं, जिस जगह ले जा चुके हैं, वहां से इसको जो है अब वापस लाना बहुत मुश्किल है। हाँ, केवल आप ये कर सकते हैं, व्यवस्थाएं ठीक कर सकते हैं, वहां कंट्रोल कर सकते हैं, उससे आप कुछ हद तक उस पर काबू पा सकेंगे। पर मुझे ये भी पूछना था कि क्या ये एक पहली बार हो रहा है या पहले भी ऐसा हो चुका है? क्या एक ये नया फिनोमेना के तौर से देखा जाएगा कि क्या ये साइक्लिकल है कि हर बार जब गर्मी पड़ती है तब ऐसा होता है, या ये पहली बार हुआ है? नहीं नहीं नहीं, पहले भी हुआ है। मतलब अमरनाथ में भी हुआ है और बाकी जगह भी ये हो रहा है। तो अमरनाथ में पहले भी जो है खबरें आई, हमने कुछ साल पहले सुना कि वो जो है यात्रा से पहले ही वहां शिवलिंग पिघल गया, और फिर बाद में जो है कहीं से उसको जो है बना करके ये खबरें रही कि, और फिर जो है आपने फ्रीज में या कहीं उसको करके और फिर वहां स्थापित किया। तो ये पहले भी हुआ है, और क्योंकि ये एक आस्था का, लोगों के विश्वास का सवाल है, तो उसको बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो है अब आप उसको लौटा नहीं सकते, तो आपको जो है ये व्यवस्थाएं करनी होंगी। अन्यथा जो है ये तो पूरा पैटर्न है, पूरे हिमालय में है, जम्मू कश्मीर में भी है, और यहाँ उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं। तो ये पहले भी होता रहा है, और लगातार जो है अब इसको बढ़ते जाना है। इसको आप कम नहीं कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसी साल हमने देखा है कि जो है गर्मी अपने पूरे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछले साल हम कह रहे थे कि पिछला साल का रिकॉर्ड टूटा, और इस बार जो है ये इस बार का जो है पिछली बार का रिकॉर्ड टूट गया है। और न सिर्फ यहाँ तो अब इस देश में, बल्कि हम तो देख रहे हैं फ्रांस में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से फ्रांस में गर्मी के बढ़ते जाने से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय फिनोमिना है, एक ग्लोबल फिनोमिना है। तो इसमें जो है अब आप केवल जो है बचाव के उपाय कर सकते हैं कि आप इसको कैसे जो है इससे बच सकें। ये उपाय जरूर हो सकते हैं, या आप अपने वातावरण को, अपनी जो आपकी जो इकोलॉजी है, आपकी प्रकृति है, उसमें जो नुकसान आप कर चुके हैं उसमें कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कितना रिस्ट्रेन कर सकते हैं, वो आप किया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारें जो हैं, जो हमारा जो व्यवस्था है, जो इस सबको देखती है, वो जो है क्योंकि उनका जो मकसद है या उनका जो टारगेट है, वो एक तो संख्या बढ़ाने में है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में ही हम देखते हैं सरकार का जो पूरा टारगेट है कि वो अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, और उसको वो अपनी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं कितने लाख लोग यहाँ पहुंच गए। और आंकड़े जो है जो दिए जाते हैं, मीडिया भी उसको इसी तरह से देखता है, उसकी सफलता को, यात्रा की सफलता को वो यात्रा में आए हुए लोगों की संख्या के हिसाब से देखता है कि कितने लाख लोग वहां पर्यटक पहुंचे। लेकिन वो ये नहीं देखता कि इतने लाख लोगों के आने की वहां क्या व्यवस्था है, और उसकी वजह से जो वहां की इकोलॉजी पर, वहां के पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। गाड़ियों का जो चलना है, यहाँ जो है हेलीकॉप्टर से जो यात्रा हो रही है, ये सब जो है इसको और ज्यादा जो है पूरे उसको वल्नरेबल बना रही है, और इसको कंट्रोल किए जाने की जरूरत है। हमारी व्यवस्थाओं को, सत्ता को, नीति नियंताओं को इस पर जो है गंभीर होकर के सोचने की आवश्यकता है। ये केवल एक अमरनाथ का मामला नहीं है, ये पूरे हिमालयी रीजन का सवाल है, और केवल धर्म और आस्था का सवाल नहीं है। ये हमारे पूरे होने न होने का, हमारे जीवन का भी सवाल है, जिसको इस दृष्टि से भी हमको व्यापक तौर पर देखे जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अतुल सती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मत सामने रखने के लिए और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ये एक अहम जगह है जहाँ पे सरकार को बहुत पॉलिसी के तौर पे सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से लोगों की संख्या कम की जा सकती है, क्योंकि लोगों के हुजूम आ जाते हैं इन सब पिलग्रिमेज साइट्स पे, पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोलॉजी के ऊपर में, उसके ऊपर कुछ सरकार का रुख करने की ज़रूरत है।